भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस। स्वामी जी, गहना कर्मणो गति जो कहा है, कर्म को ही लेके क्यों कहा? अकर्म को भी कह सकते थे, अकर्म समझना ज्यादा मुश्किल है। कर्म हम उस कर्म को तीन भाग हम लोग करते हैं, कृष्णा बाद में करते हैं, लेकिन गहना कर्मणो गति, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस कर्म, वेरी डिफिकल्ट। गहना कर्मणो गति, वेरी डिफिकल्ट। जब हम रुपया कहते हैं, रुपया का मतलब है पैसा, और डिटेल आता है 50 का नोट, 100 का नोट, डिटेल आता है बाद में। पहले तो अरे के पास पैसे वाला है ये कह देते हैं ना, और पैसे वाला करोड़पति, लखपति, हजारपति मालूम नहीं। So detail goes later on, and nobody wants themselves to be known that they are rich. You see, they don't want them to, because if I tell, this person is rich, maybe dacoits will come on him, so like that. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Sri Guru Charana Kamalebhyo Namaha. You are sitting in a wrong place because I want to see you all the time. You come this way. You can lift the chair. I lift the chair. Yeah, I want you to sit there. Sit there. Yeah. Sit here. Because I want to look at your face. No, sorry. Yeah, right. Thank you. Okay. कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्मणि च कर्मयः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ता कृत्स्न कर्म कृत्. It's very difficult to understand. Karmani karma ya pashet. Seeing karma in akarma, akarma in karma, action in inaction, inaction in action. One who sees that is buddhiman manusheshu, plural number. Plural he Krishna used, not singular. Why? Because I may say he is more intelligent than him, but there are millions and billions of people. So among all people, he is the most intelligent. Now, who sees karma in akarma, akarma in karma? Only devotee. That's why Krishna je bhaje se bodo chatur. One who has become devotee, he is the most intelligent person among all men. Men, M-E-N, includes women. When you study it carefully, not just males, but also female included in that, like that. Yajanti Srimad Bhagavatam, 11th canto. Yajanti hi sumedhasa. Sumedhas. Medha means, I spoke already, medhasa means intelligent. Sumedha means most intelligent. One who has become devotee in the tradition of Lord Chaitanya. See how Krishna Varnam, Tusa Krishnam, Lord Chaitanya's tradition. Chain of Lord Chaitanya. Anybody who has become devotee, look what he says. Black Krishna, Krishna Varnam. Krishna Varnam means
color Krishna, black. Krishna means black. Black colored God will appear Akrishnam, not black, golden color. Krishna but Bhagavatam 5000 वर्ष पहले लिखा वो बुक, 500 वर्ष पहले पैदा हुआ चैतन्य महाप्रभु. We are not blind followers. We don't accept superstition. Superstition means blind followers. We don't accept blind follow. It's not possible. Making a man a god, not possible. It's not. I will not follow. I really will not follow. Sorry. Which says Krishna Varnam, Tisa Akrishnam. A means not. The black complexioned God will appear non-black and golden color. Sangopangastra Parshadam. Sangopanga means raised hands and moving feet back and forth. Sangopanga means having his followers, Parshadas with him. God will appear. यज्ञ ही संकीर्तन प्राय और बोलेंगे वो कि यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए. भगवान बोलते, वही भगवान कौन? The black God, Krishna, will appear as Chaitanya and will move his up hands and move his feet and will come his entourage. And will say, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय. बोलेंगे वो कि संकीर्तन यज्ञ ही सब कुछ है. यजंती ही सुवेधसाः. One who will follow that, he will have intelligence. Yajanti means following, doing, participating, taking action. They will be most intelligent. Now, who will understand that? Only devotee, nobody else can understand. And devotee will work as a normal person. झाड़ू वो लगाएगा, पूजा वो करेगा, यज्ञ वो कर देगा, गाड़ी वो चलाएगा, खेत वो जोतेगा, बिजनेस वो करेगा. मेरे देखो, बिजनेस वो करेगा, रोटी वो बनाएगी. सब नॉर्मल activities, but directed to Krishna, all connected to Krishna, all result go to Krishna, like that. Because he is transcendentally situated, connected to Krishna. Transcendentally situated means he is connected to Krishna. Once you become connected to Krishna, you become Krishnaist. क्या बोलते हैं? Krishnaist. Krishnaist मतलब वैष्णव. Vaishnav. Vaishnav is Krishnaist. Vaishnav means people of God, child of God, person of God, is associate of God, connected to God. That is called Vaishnav now. Next verse, is it right? Today is the verse, this one? Today is this one? Yes. Yes. बोलिए यस्या, that is text 19. Did you open? 419. Next. 418. 419. You need glasses? No, you don't need glasses? Very small than I needed. बोलिए यस्य यस्य सर्वे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता. कितना अच्छा कन्हैया बोल रहे हैं. देखिए क्या बोल रहे हैं वो. काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधात्. कितना अच्छा बोल रहे हैं. Anybody who understands just one sloka,
Shlokartham shlokapadam va. Even half a shloka, somebody understands, he will become devotee. No other way can live. Devotee does not mean wearing robes. Devotee means can be in this Sant और साधु बताए ना हम संत और साधु दो होते हैं संत होते हैं त्यागी साधु होते हैं इसी स्वरूप में उनका दिल बदला हुआ है इस कपड़े में दिल भी गंदा हो सकता है याद रखिए अभी आए थे ना बड़े बड़े महामंडलेश्वर अभी 2 दिन पहले मेरे आश्रम में क्या आदमी है वो आप सोचते वो हमारा प्रेसिडेंट है एक हमारे सारे महामंडलेश्वरों का प्रेसिडेंट आया यहाँ और वो 10-5 महामंडलेश्वर आए समझे नहीं वहां गंदा भी हो सकता है साधु के अंदर और इसके अंदर साफ हो सकता है दिल को चाहते हैं भगवान क्या चाहते हैं कपड़ा चाहते हैं भगवान नहीं चाहते ना कपड़ा चाहते हैं यू अंडरस्टैंड हिंदी यू अंडरस्टैंड हिंदी We had a protest in the ashram. You only speak in English. We don't understand. So I spoke in Hindi with Talligaru is doing all this. This is called Talligaru. You know her, I think. She just came 2 weeks ago. She brought her portion of donation for Kumbh Mela. So this donation was not small, big one. So the head of the temple brought her here. They will stay a few days, we don't know how long. Yasya sarve samarambha यस्य सर्वे समारम्भा Yasya sarve samarambha यस्य सर्वे समारम्भा Kama sankalpa varjita काम संकल्पवर्जिता Kama sankalpa varjita काम संकल्पवर्जिता Jnanagni dagdha karmanam ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणम् Jnanagni dagdha karmanam ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणम् Different than yours, it's not same. The spacing might be different. You can Give him that one. yes. Come, let's. Yeah, this is my son book, you know. Oh, so okay. different book. Different. Okay. Previous edition. Yeah. That is the old edition book. Yeah, it will be printed in Bhubaneswar. That book. We have that. We have. Smaller. It's smaller. It's smaller. Yeah, this is the one you sent to the Bhupen. Oh, This is a Bhupen book. oh really? Yeah, and this is one that you have, it's a little bit different. Yeah, each time different press prints. Yeah, exactly. That's what Yeah. so when you said something, I was looking at here, it's not matching. Yeah. You see, certain devotees sponsor. Yeah. So this devotee lived in Bhubaneswar. I want to pay for Bhagavad Gita next time you print. We said, okay, go ahead, print it. Mhm. So they paid and printed, and it came out like that. Yeah, so Bhupen got this book, so I got it over here. Oh, you brought it? Yeah, I bought it, yeah. Ah, so you leave it here, get a new one. No problem. Now I have to give it to Bhupen back again. No, get a new one. Okay. Yeah, no problem. Please, But he has a because doctor is busy. Okay. He had the operation. Yasya sarve samarambha यस्य सर्वे समारम्भा kama sankalpa varjita काम संकल्पवर्जिताः jnanagni dagdha karmanam ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणम् tamaho panditam buddha तमाहु पंडितं बुधः yasya sarve samarambha यस्य सर्वे समारम्भा kama sankalpa varjita काम संकल्पवर्जिताः jnanagni dagdha karmanam ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणम् tamaho panditam buddha तमाहु पंडितं बुधः यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि कर्म दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। You speak. यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधः। You speak. Can you? यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। Say. यस्य सर्वा समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः तमाहो पंडितं बुधा। Very nicely speaking. भगवान श्री कृष्ण कितना अच्छा बोल रहे हैं यहाँ पे। यस्य सर्वे समारंभा, यस्य सर्वे समारंभा मीन्स यानी जो कोई कार्य करता है वो सारा कार्य सब कुछ ज्ञान काम संकल्प वर्जिता, माने उसमें से कुछ फल नहीं चाहिए, इच्छा नहीं हो। काम माने अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, संकल्प माने वो अपना कोई स्वार्थ नहीं उसमें, स्वार्थ रहित, और वो अपने में ही सेटिस्फाइड है, अपने में ही संतुष्ट है वो। एक बार व्यास महर्षि गए युधिष्ठिर से मिलने के लिए, जब वो जंगल में थे। उनसे पूछा युधिष्ठिर ने, थोड़ा बताइए कौन सुखी है इस संसार में, संसार में सुखी कौन है? क्योंकि वो पूछ रहे थे तुमको कोई तकलीफ हुए तो बताओ। दोनों कहा तो सुखी तो कौन है इसमें ना, वो सुखी है काम संकल्प वर्जिता, one who is not depending on others, one who is not dependent, जो अपने आप में ही स्थित है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, वही सुखी है। वो बोले तो काम संकल्प वर्जिता। कैसे होगा वो? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, क्योंकि सारा जो कर्म है रिएक्शन वो ज्ञान की अग्नि से जला देता है। इसीलिए वो बड़े बड़े विद्वान पुरुष उसको पंडित कहते हैं। किसको कहते हैं पंडित? जो अपने कार्य के सारे फल को जला देता है, भगवान की सेवा में लगा देता है, वो, इसका मतलब यही है। तो भगवान की, अब जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, कह दिया। पंडित कहते किसको है? क्योंकि वो ब्राह्मण के घर में जन्मा है और थोड़ा वेद जानता है, श्लोक जानता है, तो हम उसको पंडित कह देते हैं। नहीं नहीं, विद्या विनय संपन्ने, विद्या जो पढ़ लिया है वो तो विनय हो जाएगा, नम्रता। संपन्न माने इक्विप्ड, जो विद्या से विनय पूर्वक रहता है। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मण में, गाय में और हस्ती में, हाथी में, वो जितने ये डिफरेंस नहीं देखता है, वो देखता है इनमें आत्मा बैठी है। हाथी में बड़ी आत्मा है और मच्छर में छोटी आत्मा है, ऐसा नहीं है। सब में बराबर दृष्टि रखता है वो। सुनी चेव, सुनी माने कुत्ता, स्वपाके माने चंडाल, चंडाल में, कुत्ता में, हाथी में, ब्राह्मण में, गाय में क्या देखता है वो? समान दृष्टि। कैसे करेगा? अरे तो हाथ तो बड़ा होता है, मच्छर तो छोटा होता है, कुत्ता तो गंदा होता है, चंडाल तो बदमाश होता है, खराब होता है, अस्पर्श, अनटचेबल। कैसे देखा? समान दृष्टि।
न उसको आत्मदृष्टि होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? आत्मदृष्टि, तभी वो समान दृष्टि होगी। आत्मा देखेगा वो, और आत्मा सब में बराबर बैठती है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि वो बड़ा शरीर है और ये छोटा शरीर है, ऐसा नहीं है। उसी को पंडित कहते हैं। भगवान बोले सुनी चे स्वपा के जब पंडिता समदर्शी ना, समदर्शी है। अच्छा, अब यहां पे चाणक्य पंडित भी बोले। क्या बोले? पर मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित। हम पंडित के शब्द का अर्थ बता रहे हैं। दूसरों की स्त्रियों को माता की तरह देखना, मां के समान समझना। मातृवत परदारेषु, दूसरी स्त्रियों को माता के समान समझना। परद्रव्येषु को, दूसरे के धन को मट्टी की तरह समझना। कैसे लूट लेंगे उसके पैसा। ब्राह्मण झूठ बोलेगा, आपको बताएगा अरे मेरे को तो पैसा चाहिए। साधु झूठ बोलेगा, नहीं देगा, श्राप देगा, गाली बकेगा। ये क्या साधु है? अरे तुम मतलब ये भगवान बोले ना, काम संकल्प वर्जिता। अरे मतलब ही नहीं होना चाहिए उसको, स्वार्थ रहित, निस्वार्थी। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा की तरह कीमत देना। हमको तो आत्मा अपनी पसंद है, और उसको तो दूसरे की आत्मा उसको पिटो। नो, अपनी आत्मा जितनी हमको पसंद है उतना ही दूसरा को भी पसंद करना। आत्मवत सर्वभूतेषु, मेरा दुख सुख जैसा जितना मेरे को महसूस होता है ऐसा ही उनको होता है, तो मेरा दुख सुख उनके दुख सुख के बराबर समझना, उसी को पंडित कहते हैं। देखिए, अब हम कर्म कर रहे हैं कुछ भी, उसका तो रिएक्शन आना चाहिए, परिणाम। हम गेंद फेंकेंगे, दीवार पे लगेगी, वो वापस जरूर आएगी। हमारे हाथ लगे या ना लगे, लेकिन आएगी वापस। हम कितना भी उसको मना करेंगे मत आओ, वो आएगी वापस। कर्म किसी को न छोड़ता। मनुस्मृति में लिखा है कि मर जाएगा नास्तिक और आस्तिक, दोनों मर जाएगा, तो जाएगा कहाँ? कैसे मालूम है इसके पीछे किधर जाएगा? तो धर्माधि अनुगच्छति बोल दिया। धर्म और अधर्म, जितना पाप किया वो और जितना पुण्य किया, दोनों उसके पीछे जाएंगे। दो ही जाएंगे, तीसरा कोई नहीं जाएगा वहां। अब मुर्दे को लेके जाएंगे, शरीर लेके जाते हैं, लेकिन आत्मा के पीछे पीछे कौन चलता है? न उसका का किया हुआ बुरा कर्म और अच्छा कर्म, दो ही जाता। अब क्या हुआ? इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि 12 दिन के बाद उसका क्या बोलते हैं, यज्ञ संस्कार होता 12 दिन के बाद। 12 दिन के बाद 13वें दिन होता है। अब यहाँ एक प्रचलन चल गया है, 13 दिन में स्त्री को, 12 दिन में पुरुष को। नो, ऐसा नहीं है, गलत है। 12 दिन क्यों? कारण क्या है 12 दिन? 12 दिन का कारण एक ही है कि वो जैसे ही उसको घसीट के ले जाते हैं यम के दूत। यमराज और धर्मराज एक ही आदमी हैं, इसलिए दक्षिण भारत में यम धर्मराज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हमारे यहाँ यमराज ही कहते हैं, वहां यम धर्मराज कहते हैं, क्योंकि एक ही आदमी है। आप जज हैं, हम दो पार्टी आ गए, आपने निर्णय लिया मेरी तरफ, तो आप मेरे लिए धर्मराज हो गए। उसकी विरोध में लिया तो गाली बकरा रहे थे, जज को कुछ नहीं मालूम, इसने फलाना कर दिया, ढिमाग कर दिया, उसको यमराज दिखाई दे रहा। एक ही आदमी दो काम करता है, जो जज है वो ले गया खींच के, वहां निर्णय हो गया। वो बोलते हैं किसको? उसके सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी होता है ना सचिव, उसको नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त को बोलता है इसका अकाउंट खोलो, अकाउंट खोलो। वहां तो सो मेनी लाइन, बिग लाइन इज देयर, क्यों लगा हुआ है वहां, हजारों लाख करोड़ों पता नहीं कितने आदमी, अरबों आदमी है वहां लाइन में लगे हैं।
अच्छा मैं इसका अकाउंट खोलता हूं, उसको थोड़ा भेज दो। तो 9 दिन के लिए वहां से भेजा जाता है, 3 दिन में आता है, वो 9 दिन यहाँ रहता है। सृष्टि में कहाँ रहता है? वो जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, वो पृथ्वी नहीं छू सकता। पृथ्वी नहीं छू सकता तो कहाँ रहेगा वो? तो भगवान ने कह दिया पीपल के पेड़ पे। कहाँ रहेगा वो? पीपल का पेड़ मेरे को मालूम नहीं इंग्लिश में, banyan tree, banyan tree पे रहेगा वो। तो बेटा जाता है एक लटका लेकर पानी भर के वहां लटकाता है। कहाँ? पीपल के पेड़ पे 9 दिन लटकता है वो। तो वो जो प्रेत है, प्रेत माने सूक्ष्म शरीर, प्रेत माने भूत नहीं, अभी भूत नहीं बना वो प्रेत है। प्रेत और भूत में फर्क होता है। भूत का एक पैर होता है, वो चल भी सकता है, एक पैर से कूद कूद के चलता है वो, लेकिन प्रेत को पैर नहीं होता है। उसको तो वहां से भगा दिया गया है, उसका अकाउंट खुल रहा है। तो वहां से आया, वो 9 दिन रहा यहाँ पे। 9 दिन रह करके वो पिएगा पानी कहाँ से? उस मटके में छेद करेगा तो दूरबा घास होती है एक तरह की, वो घास छेद करके घास से पीता। क्यों? उसका मुंह बहुत छोटा होता है। 9 दिन के बाद वो जाता है, उसका निर्णय होता है। लेकिन वैष्णव मर गया, अभी वैकुंठ गया, तुरंत विमान आएगा अंदर से, ऊपर से, उसमें 2 पार्षद होंगे, नंद और सुनंद। रिमेंबर दैट spiritual world is different than material world. Heaven and hell are within this universe. इसी सृष्टि के अंदर है स्वर्ग और नरक। इस स्वर्ग और नरक वाले सृष्टि से निकलने के लिए हमको भक्ति करना पड़ेगा। जो भक्ति करता है उसके लिए विमान आता है। विमान में नंद और सुनंद 2 द्वारपाल होते हैं, उनके 4 हाथ होते हैं। बद्धक परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं उस मर गया भगत को। कृपया करके आइए, हाथ जोड़ बद्धा परिकरस्तेन, नम्रता पूर्वक आइए, मेरे विमान में बैठिए, आपके लिए ले आए हम। और वो बुम उड़ जाता उसी समय। वैष्णव मरा, वो शुद्ध वैष्णव है, तो जब मरा उसका शरीर समाप्त किया, तुरंत भंडारा होता है वहां, तुरंत उसी समय भंडारा होगा। क्यों? खुशी, वैकुंठ गया वो विमान में बैठ के। लेकिन दूसरा धर्मात्मा हो या पापात्मा हो, दोनों के लिए 13 दिन लगते हैं। 12 दिन के बाद 13वां दिन वो गरुड़ पुराण में आता है। वो अब उसी को पंडित कहते हैं। किसको? कौन कहता पंडित? बुधा। बुधा माने लर्नेड, विद्वान, पढ़े लिखे ऋषि मुनि आचार्य लोग कहते हैं भगत को पंडित, क्योंकि वो समदर्शी है, वो शरीर नहीं देखता है। ये स्त्री है, वो पुरुष है, वो नहीं देखता है, दोनों को बराबर से व्यवहार करता है। पंडित कौन होता है? ब्राह्मण के घर में जन्मा पंडित नहीं, कोई भी हो जिसको ये लक्षण होता है वही पंडित है। कौन बोलता है इसको? विद्वान लोग, ऋषि मुनि कहेंगे वो पंडित है, क्योंकि वो भगवान के पास है। फिर देखिए आगे क्या बोलते, ऐसे भगवान इतने अच्छे जैसे बोलते हैं, थोड़ा समझना चाहिए उसको। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽयं नैव किंचित करोति सः। कुछ भी नहीं कर रहा है, यद्यपि वो हर समय लगा हुआ है। देखा कैसे बोल रहे भगवान? क्या बोलते? नैव किंचित करोति सः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि, यद्यपि वो कर्म में करने में लगा हुआ है, सुबेरे से शाम तक काम करता है। हम कल बात कर रहे थे प्रसाद में, 2:30 बजे उठता हूँ। हम बोले ना 2:30 आई गेट अप, 2:30 बजे हम उठते हैं। तो क्या करते हैं आप? फिर चुप हो गए, वो कुछ ऐसा शुरू किया लेकिन चुप हो गए वो। यार हाँ स्वामी जी हैं, कुछ कर रहे होंगे, उनका तो काम है। डिवोटी 24 आवर्स ऑन ड्यूटी, 24 घंटे
सोना भी हो जाता है भक्ति, क्योंकि वो सोता है फ्रेश होके, सो दोबारा सेवा में लगेगा। लेकिन मेटीरियल तो शराब पी के सो रहा हो, उसका बात अलग है। लेकिन भक्त क्या कहता है, कर्माणि अपि प्रवृत्तोपि, यद्यपि वो काम कर रहा है, लगा हुआ है, लेकिन नैव किंचित करोति सः, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। देखा क्यों? उसके अपने लिए नहीं कर रहा है वो। देखा, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, वो कर्म के फल को त्याग देता है, वो उससे कोई संपर्क नहीं, संबंध नहीं। भगवान पहले बोल दिए ना 3 अध्याय में, क्या बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कह दिया ना। वो कभी भी कर्म फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। कौन छोड़ रहा है फल? हे भगवान, अरे हमने खेत में बीज बोया, अब आशा तो है ना हमारा खेत में बीज हो जाएगा, हमको आशा आया, हम 1000 रुपया लगा दिया तो हमको 2000 मिलेगा, बिजनेस कर लिया, अब आशा रहता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुम फल मेरे ऊपर छोड़ दो, कर्म करो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फल, यदि तू ऐसा कर्म फल को छोड़ देगा, त्यक्त्वा माने छोड़ दिया, आशा रहित, उससे संपर्क नहीं, फल नहीं, कुछ नहीं, खाली कर्म करेगा तू, नित्य तृप्ता। एक श्लोक है, ब्राह्मण यदि संतुष्ट नहीं, हाँ, असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा वरधा हुआ। वेश्या यदि संतुष्ट हो गई, वेश्या ने किसी आदमी को, पुरुष को लाया, पुरुष आ गया उसका पास, तो उस पुरुष से संतुष्ट हो गए तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा, वो असंतुष्ट रहना चाहिए। शास्त्र बोलता है कौन रहना चाहिए असंतुष्ट? वेश्या। वेश्या संतुष्ट हो गया तो वो सही वेश्या नहीं है, उसको तो 10 आदमी चाहे, पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूं, शास्त्र बोलता है संतुष्टा वेश्या, असंतुष्टा ब्राह्मण, दोनों खतरनाक हैं। आपने 10 रुपया दिया, मैं आया आपके पास, आज रक्षाबंधन है, राखी बांध दिया आपको, आपने 10 रुपया दिया। अरे तू यार बड़ा डॉक्टर, मेरे को 10 रुपया देता है, मैं इतनी दूर से आया तेरे को राखी बांधने, क्यों नहीं देता मेरे को 1000 रुपया? ये तो बदमाश है, अब बक बक के जाएगा वो। समझ गए ना? असंतुष्टा द्विजा नष्टा, आपने मेरे को 1 लाख रुपया दिया, आपकी शक्ति 1 लाख देने की, 10 रुपया देने की आपकी शक्ति, आप नहीं देना चाहते हैं 20, क्यों देंगे आप 20? तो 2 रुपया की राखी है तो क्यों देंगे 20? क्या जरूरत है? नो, आपकी इच्छा है, दिया, हमारे भाग्य में 10 रुपया लिखा है, सोचना चाहिए। लेकिन असंतुष्टा द्विजा नष्ट, द्विज माने विद्वान ब्राह्मण, पढ़ा लिखा, वेद में शास्त्र में स्वाहा करना मालूम, उसको 10 रुपया मिल गया तो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। देखिए, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, नित्य तृप्त, तृप्त किसको बोलते हैं? संतुष्ट को। और फिर निराश्रय, निराश्रय माने दूसरे के ऊपर आश्रय नहीं रहना। आश्रय रह गया किसी के ऊपर तो कुछ न कुछ तो कष्ट मिलेगा। डिपेंडिंग ऑन अदर्स, सांबाई। 2 ही होता है परभृत, एक तो साधु और एक चिड़िया, 2 ही होता है परभृत, उसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में परभृत, और दूसरा कोई पालन करता है उसको बोलते हैं परभृत। किसको? साधु को और चिड़िया को। थोड़ा दाना डाल दो, थोड़ा खेत में बो गया है तो उसको बाली काट के ले जाएंगे वो, चिड़िया उड़ाएंगे वो। और ये साधु महात्मा दूसरे के ही आश्रय रहता है वो। और राधे मैया दे दे, आधी रोटी देगी वो। अरे आपके पास आधी रोटी है आज, हमको 1 रोटी चाहिए, नहीं बोलेगा वो, आधी रोटी लेके चला जाएगा। ब्राह्मण कह रहे तू यार हमको झूठी दे रहा है, झूठी थाली में से आधी रोटी निकाल के दिया तेने। ब्राह्मण बकेगा, साधु नहीं बकेगा। और साधु यदि असली है तो नहीं बकेगा वो तो सही चला जाएगा। भैया हमारे भाग में आधी रोटी लिखी आज, ऐसा हो गया।
मेरे आचार्य सनातन गोस्वामी के साथ ऐसा हुआ। किसी पंडित ने आकर उनको कह दिया तुम्हारे ऊपर शनिश्चर चल रहा है। भगवान से बात करने वाले सनातन गोस्वामी, मदन मोहन जी का मंदिर है यहाँ पे, उनको मदन मोहन मिल गए एक स्त्री के यहाँ से मथुरा में। मदन मोहन एक बच्चा का नाम ले आए उसको, बाबा इसको ले जा, मैं परेशान हूं, मैं इसको ले जा, ले जाओ। कौन भैया बोलेगी अपना बेटा ले जाओ, वो तो माता बनाया भगवान ने उसको, आना है सेवा कर लेने के लिए। मदन मोहन जी वहां सनातन गोस्वामी ले आए बच्चे को। किसी ने कह दिया उनको तुम्हारे ऊपर शनिश्चर चल रहा। क्या चल रहा है? शनिश्चर बुरा होता है ना। सुन रही है तू? हम अंग्रेजी बोले, यहाँ प्रोटेस्ट हो गया इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूं। सुनिए तो सुनो, द्वादशास्त्र, ये ज्योतिष है, ज्योतिष बोल रहे हैं हम। द्वादशास्त्र जन्मस्थ शनि अर्क भोवजे गुरु कुर्वन्ति प्राण संदेह स्थान त्याग धनक्षय। शनिचर हो, गुरु हो, मंगल हो, ये सब प्राण हरण करते हैं, मार देते, मरवा देंगे, एक्सीडेंट करा देंगे, गोली चलवा देंगे, छत से गिरा देंगे, सर्प कट जाएगा, वो आपस में लड़ाई हो जाएगा, एक मुक्का मारेगा, गलत जगह पे मर जाएगा आदमी, ऐसा करेगा वो कौन? द्वादश घर में, 12वें घर में, 8वें घर में द्वादशाष्ट जन्मस्थ, नंबर 1 घर में द्वादश अष्ट जन्म 3, द्वादश अष्ट जन्म शनि, पहला नंबर शनि आया। शनि अर्क सूर्य, भूमिजा मंगल, गुरु बृहस्पति 4, गुरु मंगल सूर्य शनि, नंबर 1 शनि। बहुत खतरनाक, 7.5 बरस रहता है। कितना? 7.5 बरस। और ये गुरु कितना रहता है? 13 महीना। 1 बरस 1 महीना 13 महीना। यदि ये कोई ग्रह वहां पड़ा हुआ है तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? कुर्वन्ति प्राण संदेह, नंबर 1 प्राण संदेह रहेगा। और स्थान त्याग धनक्षय, घर बदल देगा, जॉब बदल देगा, सब नष्ट कर देगा और भगा देगा, धनक्षय माने लॉस हो जाएगा। देखिए अब ये बताया पंडित ने आके हमारे सनातन गोस्वामी को 500 वर्ष 500 ईयर्स अगो 500 वर्ष पहले बताया पंडित ने, कह दिया तुम्हारे पर शनिचर चल गया है। अच्छा शनिचर चल गया, हाँ आप थोड़ा अनुष्ठान करवा दीजिए। अब वो बोले मैं तो सन्यास के आदमी, मेरे को शनिवार को कुछ नहीं होता, तुमको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? अरे साधु को ऊपर क्या, एक आया मेरे पास यहीं पंजाब का, पंजाब मेरे भगत हैं यहाँ पे, पंजाब में भी है, तो वहां आया, स्वामी जी मैं 3 पीपा सरसों का तेल लाया हूँ शनिवार के दिन। और वो उसका दोस्त बोल रहा है इसके ऊपर शनिचर चढ़ गया है, किसी पंडित ने बोल दिया है तुम तेल लेके, सरसों का तेल लेके मंदिर में दान दे दो। मैं तेल ले आया हूँ। अच्छा हम बोले देखो हम तो ये सब काम करते नहीं और हम सब लेते नहीं, लेकिन तू यहाँ लेके आ गया है, हम नहीं कहेंगे तू ले जा, हमारे यहाँ शनिचर का बाप बैठा है, वो भी काला है, कन्हैया तू छोड़ जा। सुनिए तो सनातन गोस्वामी बोले तुमको पैसा चाहिए, याद रखिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ब्राह्मण टेल्स यू एनीथिंग, यू डोंट नीड टू बिलीव। If you believed what Brahman said, you are in a big trouble, because he will not let you go free. He will torment you whole your life, never let you go. Brahman is not a sadhu. Sadhu will not do all this. Listen, क्या हो गया? तो उन्होंने क्या किया? करवाया पुरस्चरण, लेकिन कह दिया भैया संकल्प ले जा, तू अपने आप कर। ब्राह्मण करे या न करे उसकी चिंता नहीं है, संकल्प दे दिया, उसका कर्म उसके साथ है। तो निराश्रयः, भगत हर समय भगवान के ऊपर आश्रय रहता है, आश्रित। रक्षी सतति विश्वास
गुप्तृते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वथा शरणागति। वो तो हर समय शरण में रहता है, किसके? जिसकी शरण में जाने से यस्मिन् तुष्टे सर्वमेव तुष्टम भवति, जिसको संतुष्ट कर लेने से सारे प्राणी सब संतुष्ट हो जाते हैं, उसके शरण में रहने वाले को ही निराश्रित कहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य के अंदर नहीं, केवल भगत ही निराश्रित है। वी आर नॉट मोटिवेटेड इन एनी मैनर। In any manner, devotee is never motivated. It's like that. Anything else? Did you understand? I spoke in Hindi. That's okay. So what is your question? The question तो नहीं है. नहीं. Swamiji, when someone wants to perform action in inaction, does that devotee need to be self-realized or start doing actions in inaction? From very beginning, a person becomes a devotee wholeheartedly. From very beginning, his actions are already in action. Action in inaction. What is that? Means from very beginning he offered the result of his action to Krishna. From very beginning it happens, not that only one has to be self-realized soul. ऐसा नहीं है। जो दिल से भगत बन जाता है उसका पहले ही दिन से शुरू होता है काम। जैसे एक पैसा भी रुपया है, धन है, और लाखों रुपया भी धन है। एक पैसा का चोर भी चोर है, लाखों रुपया का चोर भी चोर है। तो चोर तो दोनों हैं, एक रुपया का चोर सही, एक लाख का चोर सही, उसको तो दोनों ही क्रिमिनल है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि कोई दिल से आया है तो पहले ही दिन से उसका कार्य इनएक्शन हो गया। ऐसा नहीं है कि जब वो साधु असली बन जाएगा और बड़ा शुद्ध बन जाएगा, भगवान से बात करेगा तभी उसका कार्य। नो। I had very big fights with these devotees in ISKCON when I was in ISKCON. अरे तुम अभी आया भक्ति मार्ग में, हमारा रक्त में भक्ति है, हम तो भक्ति कर रहे, जन्म से भक्त में बन गए, तुम हमको क्या पढ़ाएंगे? वो हमको पढ़ा रहे हैं, यू डोंट नो एनीथिंग, वो बोलते हैं। अरे तेरी हमको कुछ नहीं, बात सही है, हमको कुछ नहीं मालूम। कन्हैया के सामने हम बोलेंगे, गुरु जी के सामने बोलो, तुम्हारे सामने नहीं बोलूंगा। वो आते हैं भक्ति मार्ग में, 2 साल 4 साल 10 साल बाद चले जाते हैं। यू विल सी एवरी टाइम न्यू फेस देयर। We have new face of boys because they have passed their education. They pass their education, they go, they do pandit, they become pandit somewhere. We have no connection with them. But they are every time new fellows, 2 years, 3 years, 5 years. They are all new fellows because somebody is slow learner, somebody is fast learner. They are there, they sit in exams and they pass and they go. They become pandits. We have this kind, but our devotees are permanent. तो ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्त होने के बाद ही उसका कर्म अकर्म होता है। नो, पहले दिन से ही उसको अकर्म करता है। वो कर्म करते हुए भी वो अकर्म करता है। क्यों? कि ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, भगवान से संबंध बनाया वो, इसलिए सारा कार्य भगवान के लिए है। जो ऐसा करता है वही असली भगत। देखिए, आपने नाम सुना है ना, याद आ गया मेरे को, एकलव्य का नाम सुना है? वो अंगूठा कैसे कटवा दिया? वो गुरु कैसा जो अंगूठा काट के ले गया? अरे गुरु कैसा, वो अंगूठा, एक अंगूठा ही काट के ले गया उसका। कैसा गुरु है वो कैसा चेला अंगूठा काट के दे दिया उसने? कारण क्या है उसका? कैसे गुरु है वो? सब सोचने की बात है। कथा तो कहानी तो सब पंडित सुना देगा।
पंडित केवल कथा ही सुनाएगा, कहानी सुना देगा, आपको चुटकुले सुनाएगा, आपको हंसा देगा, आपको सोने नहीं देगा। वैष्णव ऐसा कभी नहीं करेगा। आपको तो पूछेगा, वो कहेगा आप चेला बन गई, मेरा अंगूठा काट के दे दो। कोई गुरु ऐसा कहेगा? क्यों कह दिया उसने? क्या वो गुरु है क्या? पूछने की जरूरत है। और चेला कैसा अंगूठा काट फटा दे दिया? ऐसा चेला है वो सोचा नहीं, अरे तेरे को मेरे को युद्ध करना है। Everything has its reason and science behind it. Only devotee will see that. Everybody else will hang in like a, वो बैल में होता है ना, घंटे के अंदर एक प्रसाद ऐसा, इधर भी पिटता है, इधर भी पिटता है, इधर भी पिटता है, इधर भी पिटता है। Inside the bell. तो ऐसा है दुनिया। I'm happy that you कोई प्रश्न नहीं है? नहीं, अभी नहीं पढ़ता हूँ तो पहला तब समझ में आती। You have any questions? These are going tomorrow. They will be going day after tomorrow. They are going returning their home. They are here maybe 2 weeks maybe. श्री राधा गोविंद भगवान की पुष्पाद महामंडलेश्वर महंत श्री कृष्ण बलराम स्वामी जी महाराज प्रभुपाद की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधेश्वर।